So hello everyone. I hope you're doing well. If you're fit and fine, and बहुत अच्छे से तुम अपनी तैयारी कर रहे होंगे प्लेसमेंट्स की, इंटर्नशिप्स की, whether you're in first year, second year, third year, fourth year, या फिर अपन सिस्टम डिजाइन की भी तुम तैयारी कर रहे हो. This is the best way you're coming to this playlist. I will be teaching everything in detail with practice question, with interview question, and will make you the interview ready. And you will not forget these concepts in your whole lifetime. I can guarantee. If you read thoroughly the notes which I have given you, practice the problems and learn through these videos and try to intuitively guess about it, right? So yeah, with that, let's start with the video. Firstly, we'll discuss the last previous year questions because I always believe practicing questions will always make you perfect. हम बढ़िया से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यार. One more thing, just one quote that you keep trying, keep working hard, and God is not uh, God is gonna see you, yeah. So try to work hard, and you will see the results in some time. Just keep working hard, right? Okay, you're good watching here, and you're not wasting your time. So yes, let's get started quickly. So what is the default access modifier in C++ if none is specified? We already discussed that in the previous video that if you don't specify any access modifier, tell me that which is the default one. It is nothing but private, right? And that's also should be there ideally, right? It makes sense as well. If you don't specify, it should be private by default. Okay, you have to make it public if you want to do that. Okay, which of the following can access protected members of a base class? What does that mean? That means what? That protected members जो है उसमें कौन मतलब बेस क्लास से कौन उसको एक्सेस कर सकता है? तो क्या ऑब्जेक्ट्स ऑफ बेस क्लास, ऑब्जेक्ट्स ऑफ बेस क्लास तो नहीं कर सकते, राइट? तभी वो प्रोटेक्टेड है. केवल उसके जो चाइल्ड है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं. तो क्या फंक्शन आउटसाइड द क्लास? नो, that also don't work. Derived class, yes, that is not nothing but the child class. Only friend class we'll discuss later, but yeah, this is not an option. So only it's a wrong thing here actually, that's why it's wrong. And the derived class is the correct answer. C option is the correct answer. Okay, so let's quickly get started with the interview questions. It's very important. Explain the difference between the private and the protected members in C++, or you can say in any language, but what is the actually the difference? So I will also give you a good example. तो ये अपन को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि हम पहले प्राइवेट बताएं, फिर हम थोड़ा प्रोटेक्टेड बताएं, एंड देन वी विल गिव अ एनालॉजी इंग्लिश के अंदर कि हाँ, दिस इज द वे, that's how I perceived it. Okay, so you can say that private members are the members which are accessible only inside the within the class and cannot be accessed by any other class or any derived class or any elsewhere. Okay, whereas the protected members can be accessed through derived class. If they're derived publicly from the base class, then we can access that members into the other class, but they are also not accessible from outside. And you can give a good analogy that private members are like your ATM pin, your account balance. These are private. This cannot be known to anyone, but let's say an email ID or maybe some work they're protected, right? Let's say some email ID for a company, some code base inside a company that is protected. Basically within a company you can share to everyone, but outside the company you are not allowed to share it. So that's how you can say a protected example is. Okay, I hope you understand it. Then if all member variable can be made public, why do we still use private members with getters and setters? This is a very important thing, that if we can make everything public, why you're getting more writing more code, writing getters, like getters and setters are what, like setting the values using public getters and setters, and then private data members are there. Why we are doing so much hustle? Directly we can make it everything public and use it, right? But it is not the case, right? I already explained this in the previous video as well, because we need authentication, that whenever you're coming to, let's say, an account, you're not allowed to withdraw the amount, right? You have to firstly check whether the person is correct or not, he's authorized with his bank account, is entering the current pin or not. That is very very important. That's why you cannot access directly these members, because if they are made public, anybody can see it, and that's not allowed, right? You have to go through another layer, you can say that is a nothing but authentication layer. So that's why we require these getters and setters to be public and private data members to make the integrity, or you can say, you can use a very good word, encapsulated. We'll come to that in the next later videos as well. Okay, this practice implementation problem, I will try to give the solution in the description because this will make the video long. Do let me know that if you're able to solve this problem or not. We'll give you the solution in the description. Okay, so let's start with today's video. So today's lecture is about, it's not lecture, it's learning, by the way. But okay, I always मैं ऐसा इस तरीके से तुमको बताऊंगा कि
यू विल अंडरस्टैंड बाय डीप नॉलेज, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इंट्यूटिवली समझो चीजों को। ओके, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर, पहले कहानी समझते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई कंस्ट्रक्टर्स आर रिक्वायर्ड, एंड यू विल थिंक आल्सो यार ये तो इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ इट इज नॉट बीन देयर बहुत दिक्कत आएगी। जैसे हमने ना कल एक एग्जांपल किया था बैंक अकाउंट का, राइट, बैंक अकाउंट का एक अपन ने एक एग्जांपल डिस्कस किया था। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई थी, हमने हमने डिस्कस किया था कि यार हमको ना विड्रॉ करना है कुछ अमाउंट, है हमको कुछ डिपॉजिट करना है अमाउंट, ठीक है। हमने अमाउंट तो इनिशियलाइज कर दिया, इंट अमाउंट। सबको पता होगा कि अगर तुम इसको इंट अमाउंट लिखते हो, व्हेन तुम क्लास के अंदर लिख रहे हो या कहीं भी लिख रहे हो, क्या तुमको पता है कि अमाउंट किस वैल्यू से इनिशियलाइज हुआ है? तुम सोचोगे हाँ जीरो से हुआ है। देखो, इट डिपेंड्स, इट कुड डिपेंड ऑन द कंपाइलर, यू डोंट नो अमाउंट इनिशियल वैल्यू, अमाउंट इनिशियल वैल्यू, ओके, वो तुमको नहीं पता है, ठीक है, वो तुमको पता ही नहीं है कि यार कि अमाउंट की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है। तो बिल्कुल सही बात है यार, अमाउंट की इनिशियल वैल्यू तो नहीं पता, तो क्या हमको सेट करनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है, इनिशियल वैल्यू जो है वो तो सेट करनी चाहिए अमाउंट की। अब तुम सोच रहे हो कि यार इसको कैसे सेट करें क्लास के अंदर, हम ऐसे तो नहीं लिख सकते अमाउंट इक्वल्स टू जीरो, राइट? ऐसे तो अमाउंट इक्वल्स टू जीरो लिख दोगे, तुम हर बार ही उसको जीरो जीरो कर दोगे, राइट? It's not allowed in a class that you write these things like directly like this. You have to use either getters or setters, or you have to use something like constructor. But what if एक ऐसी चीज होती, जैसे ही मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाया तो इनिशियलाइज हो जाता, वो तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाए। दैट्स व्हाट कंस्ट्रक्टर हेल्प अस टू डू दैट, that it initialize the values when object is created for the first object is created, मतलब फर्स्ट टाइम ही क्रिएट होती है, ऑब्वियसली एक ही बार क्रिएट होती है ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जितनी बार भी क्रिएट होगी तो तब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर का मतलब ही यही है, और कि जैसे ही तुमने कॉल किया तुम्हारा एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर में बेसिकली यू कैन इनिशियलाइज एनीथिंग, लेट्स से अमाउंट को तुमको जीरो सेट करना है, ठीक है। लेट्स से तुमको कुछ उसका अकाउंट नंबर तो नहीं है, बट लेट्स से कुछ और तुमको चीजें उसकी पब्लिक करने के लिए, लेट्स से कुछ चीजें जो है वो बाय डिफॉल्ट कुछ जीरो से इनिशियलाइज करनी है, कुछ में भी काफी ज्यादा वैल्यू से इनिशियलाइज करनी है, जो भी तुमको इनिशियलाइजेशन करना है तुम यहाँ पे आराम से कर सकते हो। So let's see with the examples that okay constructor exactly किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। Let's try to do that. तो इसको अपन एक बार इरेज कर देते हैं, इंटरेस्टिंग कोड, ओके। राइट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ओके, बैंक क्लास ही लिखते हैं यार, बैंक क्लास से अपन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट से अपन ने एक बैंक क्लास लिखी, अपन चाहते हैं कि अमाउंट जो है हमारा जीरो से इनिशियलाइज हो, तो कैसे हम लिखेंगे? तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए कंस्ट्रक्टर का भी प्रॉपर मेथड होता है, तो हम उसको समझते हैं। पब्लिक करना होता है आपको कंस्ट्रक्टर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंस्ट्रक्टर जो है ना, तुम अगर कभी भी तुमको ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको हमेशा उसको पब्लिक करना पड़ेगा, अगर तुमको मेन के अंदर उसको यूज करना है। अगर प्रोटेक्टेड करोगे तो दूसरी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है, डिराइव्ड क्लास के अंदर। तो लेट्स मैंने पब्लिक किया तो मेन के अंदर तभी यूज कर पाओगे, ठीक है। तो पब्लिक कर दिया, कैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्टर? सेम एज द क्लास नेम, ओके। क्या करना पड़ेगा? सेम एज द कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज सेम एज क्लास नेम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपन एक प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, अपन को पता है प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर, बट स्टिल विल राइट प्राइवेट, विल राइट इंट लेट्स से बैलेंस। हमको बैलेंस पता करना है, और लेट्स से पिन भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो पिन कुछ हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम बैलेंस को जो है ना इनिशियली जो है जीरो से इनिशियलाइज करना चाहते हैं। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो तो हम 100% श्योर है कि हमारा जो इनिशियलाइजेशन स्टेप है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, ठीक है यार। बैलेंस हो गया। अब कंस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस कर लेते हैं ये चीज को समझने के बाद, एक बार मैं तुमको दिखा भी देता हूँ। लेट्स से मैं तुमको गेट बैलेंस करूँ, बैलेंस को लेट्स से हम 100 रुपीज से इनिशियलाइज कर देते हैं, तुमको और समझ में आएगा। तो मैं एक इंट गेट बैलेंस कॉल कर लेते हैं, बैलेंस कॉल कर लेते हैं, देन जस्ट रिटर्न, यू कैन से दैट बैलेंस, ओके। एंड देन व्हाट वी कैन डू इज एक इनिशियलाइज कर लेते हैं बैंक, बैंक भी इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। कुछ भेजा तो है नहीं अपन ने, अभी अपन वो भी सीखेंगे किस किस तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। एंड देन वी जस्ट कॉलिंग बी डॉट गेट बैलेंस, ओके। लेट्स से अपन ने कॉल कर दिया, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी, तो ये 100 रुपीज कॉल हो गया, राइट, वॉट एवर यू विल इनिशियलाइज है, ये हो गया। अब अपन कुछ कंस्ट्रक्टर की अच्छी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर्स के बारे में हमको क्या क्या पता है?
एक चीज हमको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टर दे डोंट हैव एनी रिटर्न वैल्यू, डोंट हैव एनी रिटर्न वैल्यू। जितनी अभी तक हमने पढ़ी है वो सब चीजें मैं मेंशन कर रहा हूँ, कुछ और चीजें हैं रिगार्डिंग अनदर कॉन्सेप्ट लाइक वर्चुअल फंक्शंस के रिगार्डिंग भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट जब हम उनको पढ़ लेंगे तो हम उसको और डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। रिटर्न वैल्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है यार, ये चीज हमको समझ में आती है। अब इसका भी टाइप हो सकता है, दे कुड बी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, कुछ भी हो सकता है। बट अगर तुमने इसको प्राइवेट कर दिया राइट, तो तुम अगर इसको प्राइवेट कर देते हो तो यू कैन नॉट यूज इन द मेन, राइट, ये तुमको समझ में आता है कि मेन में कंस्ट्रक्टर वो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाने देगा तुमको, क्योंकि वो प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड का कुछ फिर भी सेंस होता है, दैट प्रोटेक्टेड का क्या सेंस होता है कि तुम मेन में तो नहीं बना सकते, बट दूसरे क्लास में अगर तुमको वो ऑब्जेक्ट बनाना हो तो तुम बना सकते हो, तो प्रोटेक्टेड वहां काम आता है। तुम पब्लिक तो पब्लिक गई, ठीक है यार। अब इसके भी कुछ 3 टाइप्स होते हैं, काफी सारे टाइप्स होते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम मेन टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक हमारा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और एक होता है हमारा पैरामीटराइज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब अगले जो वीडियो जो हम देखने वाले हैं एक होता है शैलो कॉपी, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें शैलो कॉपी, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डीप कॉपी, ये बेसिकली दो टाइप्स हैं कंस्ट्रक्टर के, कॉपी कंस्ट्रक्टर के, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ओके। विल सी दिस इन दीज लेटर वीडियोस। आज अपन डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज को पढ़ने वाले हैं कि डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज क्या होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के बारे में हमको कुछ कुछ समझ में आ गई कि हाँ कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, कैन बी पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, एंड ठीक है। ये चीज हमेशा क्या कॉल हो जाता है, जैसे अपन कॉल करेंगे और जो भी अपन को लेट्स मेमोरी भी अलोकेट करनी है तुम वो भी कर सकते हो। अगर इंटरेस्टिंगली तुमको अगर कुछ मेमोरी को अलोकेट करना है राइट, तो भी वो कर सकते हो। लेट्स से तुम्हारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर एंड वी अपन उसको पर वेक्टर इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंक्लूड वेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन इनिशियलाइज करते समय तो वी डॉट हम रिसाइज भी कर सकते हैं, वी डॉट रिसाइज वट एवर लेट्स से 100, ओके। तो ये सब भी हम कर सकते हैं, तो जो भी मेमोरी एलोकेशन का काम है अगर तुमको कुछ भी करना हो इजीली कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमको कहानी समझ में आ गई संयम कि इट्स वेरी सिंपल, कि कुछ ऑब्जेक्ट कॉल होता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ऑल्सो यू कैन से दैट, अगर तुमको समझ में आ रहा है तो ये ऑल्सो एक मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन को पता है राइट, क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, जो भी हम जिसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं चीज़ों को, मॉडिफाई करते हैं चीज़ों को, तो सॉर्ट ऑफ ये भी एक मेंबर फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके यार, ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि तुमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया। यू हैव नॉट डिफाइंड एनीथिंग, यू हैव नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर। ऐसा भी तो हो सकता है बिना कंस्ट्रक्टर के ही कहानी चल रही थी, अभी तक मैंने तुमको कंस्ट्रक्टर के बिना ही करवाया है राइट। नहीं कंस्ट्रक्टर तो वो इम्प्लिसिट हो गया, कि मतलब इसका कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्टर हमेशा मौजूद होता है। वो इम्प्लिसिट हो गया कि मतलब वो नहीं है, वो नहीं दिख रहा है तुमको, बट वो मौजूद है। दिस इज समथिंग वियर्ड बट ओके, दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट इज, दैट इज इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। एंड एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर क्या है, जो अभी अपन ने इम्प्लीमेंट किया, जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहे हैं हम। जैसे एक बैंक का एग्जांपल जो हमने लिया था, उसमें हमने बस कुछ इनिशियलाइजेशन कर दिया, बट हमने वी आर नॉट टेकिंग एनी पैरामीटर्स, ओके। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई पैरामीटर नहीं ले रहे हैं फिर इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हो गया, तो मैं तुमको कोड में बताऊं, तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो बेसिकली, सिंपल सी बात ये है। तो दैट इज इम्प्लिसिट। बट अगर ये तुमने ऐसे कर दिया तो दैट बिकम्स एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, की यूजर ने एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हमको कहानी समझ में आती है। अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जरूरी थोड़ी ना यार कि बैलेंस 100 रुपए से स्टार्ट हो या 0 रुपीज से स्टार्ट हो, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट राइट। लेट्स से अपन एक अकाउंट खोला, अपन बैंक का एग्जांपल है देखो, बिकॉज दैट इज मोर एनालॉगस टू रियल लाइफ राइट। पैरामीटराइज में अगर अपन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें तो इट्स वेरी सिंपल। लेट्स से एक बंदा आया, लेट्स से उसका नाम अमन है,
बोलता है, "नहीं-नहीं भैया, मेरा तो है ना ₹1000 से बैलेंस स्टार्ट करो।" कोई बोलता है, "नहीं-नहीं यार, मेरे पास तो ज़्यादा रुपए नहीं है, ₹10 से स्टार्ट कर लो।" ठीक है? तो वो लाइक यार अब तो ये तो दिक्कत हो गई यार, अब कैसे करें? फिर तो यार फिर से क्या अलग से फंक्शन लिखना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा? नहीं, यू कैन यूज़ पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर। तुम एक बैलेंस फ़ील्ड दे सकते हो कि कहाँ से तुमको अमाउंट फ़ील्ड दे सकते हो या तो कि स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ बैलेंस और भी चीज़ें कर सकते हो ऑफ बैलेंस, ओके? तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? तो अगर अपन इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखें, इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना। अब अपन बैंक में क्या करें, अपन एक अमाउंट इनिशियली ले लेते हैं। कि अमाउंट ले लिया और अपन ने क्या ले लिया, लेट्स से एक नेम ले लिया, तो अपन कैर स्टार, फिर स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, बट अभी के अपन कैर स्टार ले लेते हैं। कैर स्टार नेम अगर अपन ने ले लिया, इधर भी अपन को नेम ले लेते हैं, कैर स्टार। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ तुमको, तो उसको अच्छे से समझना, चीज़ों को एकदम क्लियरिटी से समझ में आएंगी, ठीक है? तो सबसे पहले अगर अपन ने कैर स्टार लिया है तो इसको डायनेमिकली एलोकेट करना पड़ेगा मेमोरी। तो वो कैसे करते हैं बताओ? ये सबको आता होगा आई गेस। पॉइंटर्स का भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बट ठीक है, जिसको पॉइंटर्स नहीं आता है अभी के लिए समझो कि हम क्या कर रहे हैं। पहले हम नेम को अलोकेट कर देते हैं मेमोरी, ठीक है? कैसे करते हैं? न्यू कैर और फिर जैसे जो भी जितना भी लेंथ है उस नेम का, ठीक है, उतना हम अलोकेट कर देते हैं, +1 कर देते हैं। दिस इज हाउ वी अलोकेट द मेमोरी टू द नेम एंड देन व्हाट वी विल डू, विल जस्ट डू कॉपी, str कॉपी, strcpy। देखो डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन है दिस डॉट नेम, और अपन को कॉपी कहाँ से करना है, नेम से, ठीक है? दिस क्या होता है, इस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, राइट? इस तरीके से हमने नेम उसको कॉपी कर लिया। अब अगर अपन एक गेट नेम भी कॉल करे या फिर प्रिंट कर लेते हैं अपन नेम, तो वॉइड गेट नेम, वी कैन से दैट नेम एंड ऑफ एल। यू कैन डू दिस ऑल्सो हियर, तुम्हारी मर्जी। बट या अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि यार कुछ तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा, दो चीजों से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्या क्या दिया है हमने, एक तो अमाउंट दिया है, और एक्चुअली हम इसको कांस्टेंट कर लेते हैं क्योंकि हम एक कांस्टेंट स्ट्रिंग देने वाले हैं, दैट्स व्हाई विल डू अ कांस्टेंट हियर। सो अपन पहले तो अमाउंट कर लेते हैं, लेट्स से ₹1000, एंड हम उसको लेट्स से नेम दे देते हैं एसबीआई, ओके? देन वी आर डूइंग दैट एंड लेट्स से गेट नेम जो है अपन ने कॉल कर दिया, बी डॉट गेट नेम हमने कॉल कर दिया, ठीक है? इंटरेस्टिंग, ठीक है? देख लेते हैं इसको। तो एसबीआई कॉल हो गया। अब अपन सिमिलरली सेम, अब इसका अगर अपन वो कर ले बैलेंस भी कॉल कर लेते हैं, तो बी डॉट गेट बैलेंस कॉल कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको अपन सी आउट कर लेते हैं, सी आउट, ठीक है? अगर अपन इसको देखें तो क्या आ जाएगा, ₹1000 आ जाएगा। ₹100 से किया था क्या? तो अच्छा, अपन यहाँ पे अपन ने बैलेंस ₹100 का रखा है, राइट? दिस इज रॉन्ग। तो व्हाट वी हैव टू डू, बैलेंस इज इक्वल्स टू अमाउंट से इनिशियलाइज करना है। नाउ दिस इज फाइन, राइट? नाउ वट एवर यू विल गिव मी, आई विल डू दैट। ₹1000 से अपना बैलेंस इनिशियलाइज हुआ। सिमिलरली व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट यार, एक और ऑब्जेक्ट कॉल कर लो। यू कैन कॉल लेट्स से B1 हो गया, लेट्स से सी एक बैंक बना लिया तुमने, लेट्स से कैनरा बैंक हो गया, कैनरा बैंक, ओके? कैनरा बैंक तुमने इनिशियलाइज कर लिया, कैनरा बैंक हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, वही सी डॉट गेट बैलेंस कर सकते हैं। अब अपन इसको ₹100 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है? और इसको अपन भी कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसको एक एंडल लगा लेते हैं, एंडल, ठीक है? ये अपना एक बहुत ही बेसिक सा कहाँ कोड हो गया। अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसमें सी डाल देते हैं एंड इसके अंदर अपन डी डाल देते हैं। अपन समझेंगे डायनामिक मैंने क्यों किया है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो अगर अपन ने देखा तो अपन ने क्या, हाँ एसबीआई ₹1000, कैनरा बैंक ₹100, इस तरीके से हमने चीजों को कर लिया है। ठीक है यार, इतना तो हमको समझ में आ गया कि पैरामीटराइज का मतलब कुछ नहीं हुआ कि कुछ इनिशियल वैल्यूज से अपन को स्टार्ट करना हो, कुछ भी वैल्यूज अपन को भेजना हो, बट अपन को भेजना पड़ेगा फिर, ठीक है? पैरामीटराइज के अंदर उस तरीके से चीजों को अपन लिखना पड़ेगा, ठीक है यार? पैरामीटराइज समझ में आ गया, डिफॉल्ट समझ में आ गया, डिफॉल्ट में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट समझ में आ गया। जैसे कंस्ट्रक्टर होता है ना, अभी डिस्ट्रक्टर भी होता है। डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉयर की तरह हो गया, जैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपन सोल्यूशन, एक डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रॉय करता है सोल्यूशन को। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मान लो तुमने कुछ बिल्ड कर दिया, ठीक है? बिल्ड कर दिया, और तुम क्या हो, अब तुम तो एक इंजीनियर हो। इंजीनियर तो क्या होता है बताओ, इंजीनियर की सबसे बड़ी चीज क्या, वो भूल जाता है, वो भूल जाता है सब कुछ। यार बिल्कुल सही कह रहे हो यार, इंजीनियर तो भूल जाता है। तो लेट्स से तुमने एक डायनेमिकली अलोकेट की थी मेमोरी, ठीक है? डायनेमिकली
अलोकेट की थी मेमोरी, जो कि अपन ने भी स्ट्रिंग के केस में किया है, नेम के केस में डायनामिकली अलोकेट किया, राइट? मेमोरी अपन ने की थी, ठीक है? अब अपन ने क्या किया, अब यार अपन भूल गए, लेकिन इसको डिलीट करना भूल गए, करना भूल गए, लाइक वी फॉरगॉट टू डिलीट दैट। क्या करें यार, भूल गए अपन कि इफ वी फॉरगॉट टू डिलीट दिस मेमोरी, ऐसा कुछ हो जाए कि जैसे ही मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके साथ मेरा जितने भी उसके रिसोर्सेज जो मैंने अलोकेट किए थे उसको, वो भी इसके साथ डिलीट हो जाए, तो कितना बढ़िया होता। तो यार डेवलपर्स तो बहुत समझदार हैं, आलसी तो है बट समझदार हैं, उन्होंने एक अलग अनदर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, डिस्ट्रक्टर। ये कब कॉल होता है? ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ऑटोमेटिकली गेट कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट गेट्स डिलीटेड, मतलब आउट ऑफ स्कोप हो जाए, कोड खत्म हो जाए, गेट्स डिलीटेड, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली उसके फिर क्या करता है, ये फ्री कर देता है ऑल द रिसोर्सेज। और बहुत इंटरेस्टिंग है, आई विल गिव यू अ सटल डिफरेंस। मैंने क्वेश्चन भी दिया इंटरव्यू के अंदर, मैं तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा कि व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है? वो क्यों बनाया मैंने डायनामिक, को भी तुमको समझाने की मैं कोशिश, ठीक है? लेट्स ट्राई टू सी इन द एक्शन कैसा डिस्ट्रक्टर होता है। तो डिस्ट्रक्टर का कोड वेरी सिंपल है, सिमिलर टू कंस्ट्रक्टर, नेम तो उसका सेम होता है बट एक टिल्डा से इनिशियलाइज होता है। तो बैंग, तुम देखो तो बहुत समझने की कोशिश करना कैसे कॉल हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपन इसको और डिटेल में समझेंगे जब अपन और इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस समझेंगे ना, तो ये और मजेदार हो जाता है। यू कैन से दैट डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, अपन एक बार देखते हैं कि यार कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है? अभी देखो इसको मैंने एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं, इसको भी अपन कॉल कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकते हैं, बट जब अपन खत्म हो जाता है प्रोग्राम, देखना क्या है। अब समझने की कोशिश करो, ये इसको अपन ऐसा कर लेते हैं, इसको हैंडल कर लेते हैं। देखो डिस्ट्रक्टर ऐसे नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट ये समझ रहे हो तुम? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब हुआ, जब पूरा कोड खत्म हो चुका है। पहले एसबीआई हुआ, फिर कैनरा बैंक हुआ। टेक्निकली तुम सोच रहे हो कि यार यहीं पे कॉल हो जाना चाहिए था, नहीं, ये पूरा एंड में जाके डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है फाइनली, क्योंकि ऑब्जेक्ट तब डिस्ट्रॉय हुआ ना, प्रोग्राम एंड हो चुका है। दैट्स व्हाई डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड, ठीक है? अभी क्या, ये जो तुमने अलोकेट की थी ना मेमोरी, यहाँ पे ये जो मेमोरी तुमने अलोकेट की, ये फ्री कर चुके हैं इस मेमोरी को। तो यू विल बी लाइक यार ठीक है, डिस्ट्रक्टर तो मैं समझ में आ गया, फिर यार ये डिलीट क्या करता है, डिलीट किस चीज के काम आएगा? नाउ दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन ब्यूटीफुल थिंग, विल शो यू वन ब्यूटीफुल थिंग। ये सब तो ठीक है, अपन एक चीज करते हैं, एक बैंक बनाते हैं इस बार यूजिंग पॉइंटर्स। बैंक भी बनाते हैं विच इज न्यू बैंक, ओके, न्यू बैंक, ठीक है? तो अपन इसमें दो चीजें दे देते हैं, लेट्स से 500 रुपीज से इनिशियलाइज कर दिया और एसबीआई बना लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ये कर दिया अपन ने। अब एक तरीका क्या है, अपन ने वही एसबीआई बना दिया, अब अपन ने आराम से बी डॉट गेट नेम कॉल कर दिया, ठीक है? सॉरी उस तरीके से होगा, बी डॉट गेट नेम कॉल कर दिया, ठीक है? और गेट नेम में हमको वो मिल जाएगा नेम, तो ये तो सेम ही हो गया कोड, एसबीआई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एसबीआई हो गया, बट इंटरेस्टिंगली तुमको दिखा, यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टर है वो कॉल नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे चीजों को समझने की अपन कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अपन ने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट ही नहीं किया, तुम समझ रहे हो? इस ऑब्जेक्ट को तुमने डिलीट ही नहीं किया, तो फिर ये डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा? ऑब्जेक्ट नहीं डिलीट हुआ, तुमको इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो अगर तुम इसको डिलीट करो, डिलीट भी, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड, लेट्स सी। समझे, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इनिशियली अपन ने उसको स्टैटिकली बनाया था, उसको अपन ने स्टैटिकली बनाया था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे क्या हुआ कि इनिशियली हमने जो किया था ना, बी बैंक बी करके किया था, वो तो डायरेक्टली स्टैटिक मेमोरी में था, तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता, बट यहाँ पे अपन को एक्सप्लिसिटली उसको डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके डिलीट हुआ। अब एक और चीज इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। अब तुम बोलोगे यार डिलीट और डिस्ट्रक्टर में भी डिफरेंस क्या हुआ? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बताता हूँ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। देखो जब अपन डायनेमिकली मेमोरी बनाते हैं ना, इसके अंदर एक तो ये ऑब्जेक्ट है डायनामिक, विच इज ऑब्जेक्ट विच इज बी। इसके अंदर तुमने एक और डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाया विच इज द एरे, और यू कैन से द नेम का एरे। जब तुम डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हो ना, तो दिस गेट वेनिश्ड व्हेन डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। उसको तुम बुला भी सकते हो, अभी देखते हैं कैसे बुलाते हैं। बट अगर तुम डिलीट कॉल करते हो, तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा ही डिलीट हो जाता है, कंप्लीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस? डिलीट में दोनों चीजें क्लीन हो जाती, क्लीन द रिसोर्सेज, क्लीन अप
the resources plus structure plus the memory allocated memory of object, memory of object. बट डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, डिस्ट्रक्टर में ओनली क्लीन अप द रिसोर्सेज होता है, ओनली क्लीन अप the resources. Very important, very important interview question. I also listed in the practice questions. Try to frame your answer. That अच्छा अब समझा कि अगर डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना, केवल ये ग्रीन वाला जो बॉक्स है ना वो रह जाएगा, डिलीट नहीं होगा, उसको पता नहीं है ना कहाँ से लोकेट हुआ। बट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये तुमने स्टैटिकली डिफाइन किया ना ऑब्जेक्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुआ हीप में, राइट। बट ओनली ओनली फॉर डायनेमिक ऑब्जेक्ट, डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि वो डिलीट नहीं हुए, राइट। अब इसको तुम डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली कॉल भी कर सकते हो, अपन इसको देख लेते हैं कैसे कॉल करें। लेट्स से हमने डिलीट नहीं कॉल किया, हमने क्या किया, हमने ना ये कॉल कर दिया, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, अब क्या हुआ। देखो डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, बट ये जो बैंक भी है ना, ये तुमने ये अभी तक डिलीट नहीं किया इसका इंटरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी हीप में लोकेटेड है, कहाँ है पता नहीं। ये रिसोर्सेज डिलीट हो चुके हैं, ये जो एरे था ये डिलीट हो चुका है, दिस नो मोर स्पेस कैरिंग बाय दिस। ये भी हीप में है बट ये डिलीट हो चुका है, बट ये कहाँ है ये नहीं पता। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So I hope you understood the entire concept. And yeah, that was it about it. Let's try to go with the quiz time. And this is the question: which of the following is true about the constructor in C++? Do comment it down. Like yes, let's see. तुम कितना लोग कमेंट करते हैं कितना लोग सीखे हैं। तो constructor can have a return type. You know, constructor automatically invoke when objects are created. Okay. Constructor must be always private. Okay. Constructor manually called using new. So yeah, L in the description. So I will be telling the answer. Pause the video. Try to think. Try to revise. Recall whatever I was thinking. Don't do GPT. Don't do that. Try to learn whatever I taught. 5, 4, 3, 2, 1. The answer would be yes. The answer is B. Why? Constructor automatically invoked when objects are created. Absolutely correct. Can I have a return type? No. Must be already right? No. Constructor manually created call? No. They automatically called. Okay. So yes, this is it for today's video. These are the practice questions. What is the difference between destructor and delete operator, which I explained in the last class. Try to frame an interview-like question. I will also explain in the next video as well. Explain the differences between a default constructor and a parameterized constructor with suitable examples. Try to formulate a question. And this is another design question. Design a student class with these specification, and this you have to write it using these things. Do let me know comments. Also, I have attached the solution of this practice question in the notes itself. So do check it out the notes as well. Do read the notes as well. It is very detailed. I'm telling you, if you follow these resources, you're done. Done. You cannot. You have everything about know about oops. In night also, if it's somebody asks, right, we'll tell the answer. Right. So yeah, that's it for today. Then we'll see you in the next video. Bye bye.